वार्तालाप रिकॉर्ड भी हो रही है। ओके सर। बेसिकली आपने क्राइम फ्री भारत मिशन ज्वाइन किया हुआ है। यस अब सर। तक आपने क्या समझ पाए हैं आप इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत इमीडिएट रिलेवेंस वाला मामला है। करेक्ट सर। सर, what I understood, because I didn't go into the details and other things. As I understood by the name itself, it is going to be a crime-free India, or we can say that it is a corrupt-free India type. You are going to do the things. That's what basic thing I understood. दैट इज वेरी ट्रू। Yeah. बेसिकली यदि इसको हम समझना चाहें Okay. तो इनिशियली इट स्टार्टेड एज ए कोर policing concept, right? Yeah, correct. In 2017, I submitted a concept note to Government of India. Okay. How this country could be made crime free using Yes. technology. Okay. And that project was examined for almost 2 years because it is having very detailed and elaborate process to process it. Because the concept note is then sent to the all states, and then it is examined, and then there is a peer group review, and finally, if it is true, then it is accepted. So, in 2019, it was accepted as a national police mission. Okay, sir. This national police mission is being headed by me, even as on date also. Yes, sir. I sent one draft law also to the Government of India to provide a constitutional basis, because there is always impression the policing is a state subject. Yes, sir. So, though I call that law a digital Chitragupta, but the technical name was big name, National Authority for Scientific and Technical Assistance in Investigation and Detection of Crime, under 365C, Schedule 7 of the Constitution. Yes, sir. I realized in 2001, 21, that the government will not do it, because when your majority of politicians and lawmakers, they themselves are the criminal, Yes, sir. crime-free Bharat cannot be acceptable to them. Correct. So then one NGO was also formed, that is the Crime-Free Bharat Mission, and I am the national president of that, and then app and things like that. And now it is basically has upgraded itself in a very big mission, which is now working for 21 objectives. Yes, sir. And now the crime-free Bharat has been pushed to the point number 5 or so. Okay. Now the topmost priority has become कि जो कानून आपके ऊपर थोपे हुए हैं, हमारे ऊपर थोपे हुए हैं, दे आर ऑल कॉलोनियल रूल्स, जो हम भारतीय गुलामों पर अत्याचार करने के लिए, उत्पीड़न करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और देश को लूटने के लिए जो अंग्रेजों ने नियम कानून बनाए थे, वो सब आज हमारे ऊपर यथावत थोपे हुए हैं। ओके। इवन हमारी पुलिस जो है वो 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है। करेक्ट। और जो आपका पीनल कोड है जिसके तहत सजाएं मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड इंडियन पेनल कोड, इट इज ऑफ 1860। करेक्ट। और ये सब लॉ का जो फ्रेमवर्क बनाया गया था, इट वाज इन एंड अराउंड 1857 की जो क्रांति है, वैसी क्रांति दोबारा ना हो पाए और उसको कैसे दमन किया जाए, इस फ्रेम माइंड से और इस ऑब्जेक्टिव से इसे बनाया गया था। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे राजनेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों के नियम ही थोप के रखना उचित समझा, और
जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी वही प्रशासनिक व्यवस्था है जो बिना बड़ी बड़ी गलती के फ्रीडम फाइटर्स को फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी। द सेम फ्रेमवर्क, सेम रूल्स एंड सेम थिंग हैज बीन स्टिल जो है ना thrust on us. And unfortunately, Rajneta themselves, they are people of the doubtful integrity. They are criminals. इसको हम कहते हैं कि बाहुबली हैं, दल बदलू हैं और अपराधी भी हैं। And I am very sure you must be knowing it, being a learned citizen, कि जो अभी हमारी पार्लियामेंट है उसमें 42% ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज पर देयर ओन एफिडेविट दे आर हैविंग। बीच में आपका वॉइस कट हो गया सर। हाँ, मैंने कहा कि 42% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके अपने एडमिशन के हिसाब से उनके विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड हैं और 29% के विरुद्ध तो बहुत ही गंभीर अपराध हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार एटसेट्रा। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अभी जो 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है उसमें 51% एमएलए जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं। मतलब 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 जो है आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, विच मेक्स इट 51%। करेक्ट सर। तो फिर एक सिस्टम ये निकाला गया कि हम इन जब तक राजनेताओं, क्योंकि जो भी राक्षसी व्यवस्था इस समय हमारे ऊपर थुपी हुई है, जो कि महंगाई से लेके जितनी भी मक्कारी है, फ्री भी है, ऑल काइंड ऑफ द बुलशिट इज बीइंग डन बाय, यदि हम इस व्यवस्था को राक्षसी व्यवस्था कहें और इस राक्षस के यदि जान, जैसे पहले पुरानी कहानियों में होता था कि एक राक्षस की जान तोते में है, तो वो तोता आज के राजनेता है। करेक्ट। मतलब यदि इस राक्षसी व्यवस्था को बदलना है, दमन करना है, तो हमें ये राजनेता रूपी तोते को पराजित करना होगा और वो भी आज के दिए गए मॉडल में। करेक्ट। और इसके लिए एक ऐप और जो पूरी व्यवस्था और कॉन्सेप्ट बनाया गया जिसके आप भी सदस्य हैं, राइट? अभी इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वेरी लेट वी डिसाइडेड कि हम कर्नाटका में हमारे चंद्रगुप्त चुनाव लड़ेंगे। तो क्या आपको सदस्य और चंद्रगुप्त का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? Sir, concept now only you were explained last time. One person explained, I was not very clear. Now I'm getting bit clear. Suppose if any document or anything is there, I can go through the things. But I'm very clear. I don't want to participate in the elections and everything. I'm very clear, sir. But I'm ready to support the organization. देखिए, मैं I will explain it. नंबर 1, you were talking of the document. तो ये पूरा एक वेब पोर्टल है जिसका नाम क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल है, CFB वेब पोर्टल। तो आप यदि उसको सर्च करेंगे तो आपको जो है गूगल वेब पोर्टल मिल जाए, जो CFB वेब पोर्टल मिलेगा, जो क्राइम फ्री भारत की वेब पोर्टल है, जिसमें ऑब्जेक्टिव से लेके एवरीथिंग इज देयर सब। हाँ, उसमें यूट्यूब पे 2900 से भी ज्यादा वीडियोज हैं जो इन 21 ऑब्जेक्टिव को कैसे जमीन पे उतारेंगे, बिकॉज द होल कॉन्सेप्ट इज हाईली टेक्नोलॉजी ड्रिवन आल्सो। तो उसमें लॉ का फ्रेमवर्क है और टेक्नोलॉजी का है, और इन दोनों के माध्यम से दैट नेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक प्लेस। क्योंकि जब तक लॉ नहीं बदलेगा तब तक जो है कुछ हो नहीं सकता है, और ये राजनेता लॉ बदलेंगे नहीं, राइट? इसलिए इन राजनेताओं को हराना जरूरी है, राइट? करेक्ट। अब आपने जैसे आउटसेट में एक बात कही कि हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और हमारा जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना? करेक्ट, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। हाँ, हर किसी को क्लियर होना चाहिए। इसी चीज को जो आपने कहा है, इसी को हमने 2 पार्ट में बांटा है। एक सदस्य
जिसमें अभी आपने कहा है आप क्वालिफाई कर रहे हैं, राइट? सदस्य क्या कह रहा है कि हमें अच्छा और परिवर्तित भारत तो चाहिए, हमें गुलामों के नियम कानून से निजात चाहिए, हमें पारदर्शी अकाउंटेबल व्यवस्था चाहिए। यदि वो गलत निर्णय लेती है तो न केवल उसे दंड मिले बल्कि उससे क्षतिपूर्ति भी कराई जाए, कंपनसेशन भी दिलाया जाए, राइट? करेक्ट। 5 सर्टेनिटी के साथ क्राइम फ्री भारत हो, जिसमें थाने भी न जाना पड़े, जिसमें कि बिना कोर्ट जाए कोर्ट का ट्रायल वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से हो, और यदि टैक्स फ्री भारत हो जाए और हमारे पास 20 गुना राशि भारत के विकास में फिर भी अवेलेबल हो, तो ऐसा भारत यदि हमको मिले तो अच्छा है, जैसा कहा जा रहा है, ठीक है ना? बट हमारी सोच, क्षमता, परिस्थितियों के कारण हम सामने नहीं आना चाहते, जैसा आपने कहा है। वी वांट टू बी बिहाइंड द कर्टेन बट फुल्ली कमिटेड इन सपोर्ट, राइट? करेक्ट। तो ऐसे व्यक्ति को हमने सदस्य कहा है, और जो व्यक्ति फ्रंट में आके कंपटीशन में आके अपने आप को चंद्रगुप्त स्टैब्लिश करेगा, उसको ही विल बी प्लेइंग ए रोल जिसमें कि वो राजनेताओं को डिफीट भी करेगा। तो पहले मैं आपके रोल वाला पॉइंट समझाता हूँ। यस सर। दैट इज द सदस्यता वाला रोल। तो सदस्यता में केवल ये है कि हमें संकल्प ले रहे हैं कि हमें 90 लोगों को जोड़ना है, ये शपथ है, राइट? और जोड़ना किसको है? सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट विद द फैमिली, राइट? तो मिसेज गुप्ता को जोड़ना है, बच्चों को जोड़ना है, फिर आता है कि मित्रों को जोड़ना है, जहां आप रह रहे हैं उसके आस पड़ोस के पड़ोसियों को जोड़ना है, फिर आता है उसमें रिश्तेदारों को जोड़ना है, फिर आता है कि जो हमारे विभिन्न सर्कल्स होते हैं, जैसे यू आर ए टेक्निकल पर्सन, राइट? तो बहुत सारे सर्कल्स होंगे, टेक्नोक्रेट वाला सर्कल होगा, जैसे बनिया है तो गुप्ता वाला जो एक सर्कल है वो भी हो सकता है। तो ढेर सारे जो हमारे सर्कल्स होते हैं, प्रोफेशनल सर्कल्स भी होते हैं, सोशल सर्कल भी हो सकते हैं। तो द पीपल दोज हु आर कनेक्टेड फॉर क्वाइट सम टाइम, उनको जोड़ना है। और आसपास में जो बच्चे हैं, युवा विद्यार्थी हैं, उनको भी जोड़ना है। और आसपास कोई वरिष्ठ नागरिक है तो उसको जोड़ना है, और समाज सेवी संगठनों को जोड़ना है। कुल मिला के 90 लोगों को ही जोड़ना है। 90 लोगों के जोड़ने से संकल्प पूरा हो जाता है। ओके सर। राइट। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है शपथ का, वो ये है कि हम क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल, जिसमें इस समय 2900 से भी अधिक वीडियो अपलोडेड हैं, उसको सब्सक्राइब करना और एक वीडियो देखना भी शपथ का हिस्सा है। ओके। और वो शपथ, ये इसका मकसद ये है कि यदि हम एक वीडियो हर दिन देखेंगे तो हमारी ऊर्जा का लेवल बरकरार रहेगा या थोड़ा सा इंक्रीमेंटली बढ़ेगा। सो हमारा कमिटमेंट और हमारी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। दैट इज द पर्पस। एंड एज यू विल गो थ्रू दोज वीडियोज, तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, सो योर एनर्जी लेवल एंड डिटर्मिनेशन आल्सो। Correct. So that is the purpose of why you need to subscribe Crime Free Bharat, why you need to see it, so that आपको blindly विश्वास नहीं करना है। You will get nut and bolts to understand things properly, right? तो वो शपथ का दूसरा हिस्सा है। फिर शपथ का तीसरा हिस्सा आता है जो कि मोस्ट ऑपरेटिंग पार्ट है इसका, जिसमें कि पूरा जो है परिवर्तन का जो है जान छिपी हुई है। वो ये है कि जो लोग चंद्रगुप्ती कंपटीशन में होंगे तो वो कंपटीशन भी लोगों का जोड़ने का है। जो सदस्य कर रहे हैं वही चंद्रगुप्त कर रहे हैं। केवल डिफरेंस ये है कि सदस्य का काम केवल 90 लोगों को जोड़ के खत्म हो जा रहा है, उसका संकल्प पूरा हो जा रहा है, जबकि चंद्रगुप्त को कंपटीशन में लगातार लोगों को संगोष्ठियां करके जोड़ना है। और जैसे कि हर कंपटीशन का रिजल्ट किसी न किसी दिन निकलता है, तो इस कंपटीशन का रिजल्ट निकलेगा जिस दिन चुनाव का डिक्लेरेशन होता है, नोटिफिकेशन होता है, राइट? जैसे कि अभी कर्नाटका का चुनाव है और मेरे ख्याल से मई में होगा,
तो जिस दिन चुनाव उसका वहां का नोटिफाई होगा उस दिन उसका रिजल्ट निकलेगा। और जैसे कर्नाटका में 224 MLAs हैं, राइट? तो ऊपर के 224 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़े हुए होंगे उन्हें चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा, राइट? फिर क्राइम फ्री भारत इज ए मिशन, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने क्राइम फ्री भारत को अपने सभी जो है हक समर्पित कर दिए हैं। मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी तो है लेकिन वो अपने तरफ से किसी को टिकट नहीं देगी। क्राइम फ्री भारत मिशन के जो चंद्रगुप्त होंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। और चंद्रगुप्त मतलब क्राइम फ्री भारत मिशन के जो चंद्रगुप्त हैं वो लोग हैं जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है। तो इसका डिक्लेरेशन उस दिन होगा जिस दिन की चुनाव का नोटिफिकेशन होगा, राइट? फिर जो पॉलिटिकल पार्टी है इसका अध्यक्ष हमारे आदेश के तहत, क्राइम फ्री भारत मिशन के नेशनल प्रेसिडेंट के आदेश के तहत एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट लेके भी जाएगा कि आपने इतने लोगों को जोड़ा, आपकी ये रैंक है, ये है, और हम आपको बधाई देते हैं कि आप चंद्रगुप्त हैं, राइट? और साथ में जो है वो विधायक का टिकट भी दे देगा उसको। मतलब नाउ द चंद्रगुप्त नीड नॉट टू गो किसी के पास, उसको सिर्फ लोगों को जोड़ने का एक ही काम है। और उसको जोड़ने के लिए, लोगों को समझाने के लिए जो 2900 वीडियोज हैं, दे आर एट द सर्विस ऑफ दोज पीपुल, राइट? तो वो समझाने की बजाय खुद पूरी बात बताए, बेटर कोर्स ऑफ एक्शन है कि जो वीडियोज हैं उनको देख के चर्चा करके और लोगों को ऊर्जाकृत करके उनसे पूछ के कि भाई आप सदस्य भूमिका में जुड़ना चाहते हैं या चंद्रगुप्ती भूमिका में जुड़ना चाहते हैं। सो देयर जॉब इज नॉट डिफिकल्ट, द इज ओनली थिंग दैट कि आपका 21 ऑब्जेक्टिव के प्रति अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए और लोगों के बीच में जाके संगोष्ठी करके जोड़ना है, राइट? नाउ ये जो 224 चंद्रगुप्त डिक्लेयर होंगे जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन होगा, उनके पास टिकट पहुंच गया, राइट? अब जो सदस्य का क्या काम है, वो चंद्रगुप्त की बात इसलिए मैंने समझाई थी कि चंद्रगुप्त जिस दिन से चुनाव डिक्लेरेशन होगा और जिस दिन से चंद्रगुप्त घोषित कर दिए जाएंगे उस दिन से हर सदस्य को अपनी छत पर, जहां वो रह रहा है, यदि छत नहीं है तो चबूतरा, चबूतरा नहीं है तो दरवाजे पे खड़ा होके उसे थाली बजाना है, दीपक जलाना है और कहना है कि फलाना फलाना मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, राइट? और ये कार्रवाई उसे हर दिन करना है और इसके पीछे बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन भी है, राइट? एंड उसका कमिटमेंट का जो लास्ट हिस्सा है कि जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन मैं पोलिंग बूथ पर जाकर ईवीएम मशीन में अपने चंद्रगुप्त के फेवर में बटन दबाकर 21 लक्षों की प्राप्ति हेतु उसे विजयी बनाऊंगा। तो वो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, वो 21 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है जिसके तहत आपको जो है अपराध मुक्त भारत मिलेगा। ओके, दिस इज द होल फिलॉसफी। तो आप चंद्रगुप्त बन गए हैं और मैंने ये देखा है कि आपके शायद कितने हैं अभी वो पॉइंट्स, आई थिंक बहुत ज्यादा नहीं है। एक मिनट, मेरे ख्याल से एक सेकेंड, अभी देखते हैं। तब तक आप ये बताइए जरा कि आप कर्नाटका में कब से रह रहे हैं। टेल मी समथिंग लिटिल अबाउट योर बैकग्राउंड। Sir, basically I born and brought up in Andhra Pradesh. Okay. And at the age of 18 years, I joined in Indian Air Force. I Okay. served in Indian Air Force for 20 years. Oh, great. Yes, sir. And after that, I retired. And before retiring, I was instructor for the new trainees who were joining in Air Force at Air Force Station Jalahali. Okay. So, 97 to 2000, I was teaching the subjects and other things. That was the thing. After that, I retired. After I didn't give extension because of my children's education. I want to settle down at one place. Mm-hmm. So, 97 onwards, I'm there in Bangalore. And I settled in Bangalore itself till date. Oh, great. Presently, and I worked in multiple companies, Indian MNCs and abroad also MNCs I worked. Mm-hmm. Starting from Reliance to now working in Havells. Oh. Multinational companies and other things. Havells, which deals with the electrical appliances.
Yeah, correct. But Yeah. I am heading the solar division for the projects and services. Okay, so Havel is now having the solar division as well. Solar division also. In that last 5.5 years, I am working as a head of projects and service Okay. across India. This I am taking care. तो गुप्ता जी, मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की है, Yes, इसमें sir. यू आर हैविंग 682 पॉइंट्स, Yes, और sir. वो आपके जनरल वाली एक्टिविटीज से हैं, आपने किसी भी Yeah, व्यक्ति correct. को नहीं जोड़ा है। Correct, sir. तो मतलब आपका जो रेफरल जिसपे जो कि कोर इशू होता है लोगों को जोड़ने का, वो Correct. आपकी वो अभी एक्टिविटी मैं किया वो नहीं. एक्टिविटी आपकी जीरो रही है। Yeah, correct. तो चूंकि अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि वी हैव डिसाइडेड कि कर्नाटका में क्राइम फ्री भारत अपने चंद्रगुप्तों को उतारेगा, और ये बड़ा लेट डिसीजन हम ले पाए, और या हमने अभी सोचा, बल्कि हमको तो जानकारी ही नहीं थी कि इतने जल्दी वहां का चुनाव है। तो वी वेर थिंकिंग के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के ही चुनाव हैं, तो हमारा ध्यान बाकी जगह गया नहीं, राइट। Correct, sir. चर्चा के दौरान जो है ना, आई वाज टॉकिंग टू सम कर्नाटक पर्सन, तो देन ही टोल्ड मी कि वहां पे भी चुनाव है, राइट। तो Correct. तो देन वी सेड कि नहीं, कर्नाटका तो बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज देयर आर सो मेनी टेक्नोक्रेट्स एंड दिस इज ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव, जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारी चीजें कर ली गई हैं, बट वी विल बी रिक्वायरिंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज फॉर द गैप फिलिंग। जो गैप्स रह गए हैं, जो थोड़ा सा अपग्रेडेशन रह गया है, जो इंटीग्रेशन रह गया है, लिहाजा कर्नाटका इज ए स्टेट विच कैन नॉट बी एंड मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड, राइट। Correct, sir. तो एक तो मैं आपसे अपेक्षा करना चाहूंगा कि क्या आप संगोष्ठियां कंप्लीट करके, वुड यू बी इन पोजिशन टू कंप्लीट योर संकल्प ऑफ 90 days at your earliest? Okay, sir. If that is done, then it will be really helping. अच्छा, जब आप Sure. लोगों को जोड़ रहे हैं, तो लोगों को अकेला जोड़ना पर्याप्त नहीं है। आपको जो है उनके साथ बैठ के उन्हें कॉन्सेप्ट को समझाना है उनके साथ, और उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को क्या सब्सक्राइब किया है क्या? नहीं सर, नहीं किया है तो फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग, फर्स्ट टाइम आई Okay. एम हियरिंग. Okay, so I will request you, that will help you to understand Crime Free Bharat also. So I will request you to explore web portal also, and I would like to कि you search Crime Free Bharat. Crime Free India मत लिखना, because वो कुछ जर्नलिस्ट की चैनल है। Crime Free भारत, भारत is, you have to be careful, right? So जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आई विल शो यू कि, आई विल टेल यू कि कैसे हमें यूट्यूब चैनल को देखना चाहिए। तो पहले तो आपको ये जानकारी होगी, यू मस्ट बी नोइंग दैट दिस यूट्यूब जो है, दे आर हैविंग देयर एल्गोरिथम, एंड दैट एल्गोरिथम डिसाइड व्हाट टू बी पुश्ड। करेक्ट। तो आपको सिक्वेंशियली चीजें नहीं आती हैं, राइट। वो कहीं अपने, उनका एक अपना एटरनम कोई तरीका है जो एल्गोरिथम उसको पुश करती है, उसके क्राइटेरिया से वो मटेरियल को पुश करती है, राइट। अब यदि आप चैनल के को देखने का जो तरीका है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली वी शुड डू, सो दैट वी कैन बी इनसाइड द चैनल एंड वी कैन सी द थिंग्स एज पर अवर रिक्वायरमेंट, एज पर अवर प्रायोरिटी, राइट। इट नीड नॉट टू बी डिक्टेटेड बाय यूट्यूब्स एल्गोरिथम, राइट। तो इसमें जो सबसे पहला चीज होता है कि यू सब्सक्राइब द चैनल, और जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं तो ऐप के नीचे की तरफ जो कुछ टैब्स हैं, जैसे सेंटर में एक टैब प्लस होता है जिसे आप पोस्ट कर सकते हैं, राइट में उसके जस्ट राइट में पहला होता है सब्सक्रिप्शन। तो जो चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन टैब को क्लिक करेंगे तो ऊपर जो है ना, ऑल चैनल सब्सक्राइब्ड बाय यू, दे विल जो है ना कम ऑन द टॉप, राइट। और चूंकि क्राइम फ्री भारत को आप लास्ट जो है ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो वो नंबर 1 पे आपको क्राइम फ्री भारत दिखाई देगा। और यदि आपने क्राइम फ्री भारत के बाद और कोई चैनल्स भी सब्सक्राइब की हैं, तो फिर आपको स्क्रॉल करके उसको देखना पड़ेगा कि क्राइम फ्री भारत चैनल कहाँ है आपकी, ठीक है ना। तो जब आप क्राइम फ्री भारत चैनल को आपने प्रिज्यूमिंग कि आपने लास्ट में किया है, और वो तो आपको पहला ही पे मिल जाएगी। अब उसको आप चैनल को आप क्लिक करेंगे, स्टिल इनसाइड, यू आर नॉट इनसाइड द चैनल,
इट यू आर एट द गेट ऑफ चैनल, यू कैन सी कि जो है ना ये इसमें ये चीजें हैं, लेकिन आप चैनल के अंदर नहीं है, राइट? तो उसमें नीचे की तरफ एक लिखा रहता है थोड़ा सा ब्लू, उसमें व्यू चैनल. सो द राइट वे टू सी इट, click on the view channel. Okay. When you click on the view channel, then you are inside the channel, right? तो चैनल का पहला टैब होता है होम, फिर वीडियो, फिर शॉर्ट्स जो कि 3 मिनट से कम के होते हैं, देन लाइव जो बहुत सारे लाइव सेशंस टेलीकास्ट होते हैं वो लाइव सेशन, एंड देन उसमें प्ले लिस्ट वगैरह, एंड इम्पोर्टेंट इज कम्युनिटी. तो कम्युनिटी में आई कीप ऑन पुशिंग थिंग्स विच आर not originally from my side, but I feel they are relevant and हमारी कम्युनिटी को पुश होना चाहिए वो, राइट? तो जनरली ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो भी मुझे हाथ लगती है उसे हम कम्युनिटी पे परोस देते हैं, सो दैट द सेम मटेरियल कैन बी यूजफुल टू द पीपल कनेक्टेड विद अस, राइट? तो इसमें आपको वीडियो, लाइव और कम्युनिटी, ये 3 विशेष तौर पे बहुत जरूरी है. यदि आप उसको देखेंगे, और यहाँ पे आपको सिक्वेंशली मिलेगा वो, मतलब जो तो यू कैन सी इन ए सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में वो परोसा गया, अपलोड किया गया, उस सीक्वेंस में उसको वो दिखाई देगा. सो यू कैन, उसमें पूरा डिटेलिंग होता है, लिखा रहता है क्या है, डिस्क्रिप्शन में उसके डिटेल दिए रहते हैं. तो दैट इज द वे यू शुड सी द चैनल, राइट? ओके. अब हम आपको ये तरीका बताते हैं कि जैसे आप साथ में बैठेंगे अपने लोगों को तो जोड़ने के पहले, तो इसमें जोड़ना अकेला पर्याप्त नहीं है, सामने वाले का कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि ये बहुत बड़ा काम है, इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दिस नेशन. मतलब यू कैन इमेजिन कि आपके नियम कानून जो कि अंग्रेजों वाले, गुलामों वाले हैं, वो बदल जाएंगे, प्रशासनिक व्यवस्था अकाउंटेबल हो जाएगी, और पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगी, और वो गलत निर्णय नहीं ले पाएंगे. यदि गलत निर्णय लेंगे तो उन्हें कंपनसेशन देना होगा. तो दैट विल बी ए बिग चेंज. अभी जबकि देखा जाए हमारा पूरे उसमें सिस्टम में हर कोई लॉर्ड है, सब, इवन जो चपरासी है वो भी लॉर्ड है, राइट? हाँ, तो उस लॉर्डशिप के कॉन्सेप्ट से हटके एक अकाउंटेबल सिस्टम विच इज एट द सर्विस ऑफ द पब्लिक, दे आर सपोज टू टेक डिसीजंस, सो दे आर हैविंग द power to take decision, but they are accountable to their decision. If they will take wrong decision, they have to pay compensation also, right? क्राइम फ्री भारत का जैसे मैंने 5 सर्टेनिटी के साथ जो है बिना थाने जाए आपकी FIR हो जाएगी, तो दैट ऑल दीज थिंग्स नाउ द पर्सन नीड टू एक्सप्लेन, एंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट कि यदि हम साथ में थोड़ा सा भूमिका जो आपको अपने शब्दों में कह के, बेटर टू सी ए वीडियो जो आपको अच्छा लगा. Because I am talking with the n number of the people, जैसे हमने आपको बताया कि this is getting recorded, तो ये कल तक जो हमारी बातचीत है, even this will be जो है ना uploaded on crime free भारत मिशन, right? And the purpose is this कि जो हमारी एनर्जी है बातचीत की, और जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं, तो हम एक व्यक्ति को समझा रहे हैं, that can be used for the by others also. Correct. That is the purpose. It is a more of a saving of time and energy, and making the wider and use of the same energy, right? Yes. So what we suggest कि हम जहाँ पे प्रेफरेबली जो अपने लोग हैं उनके साथ यदि फोन करके कि हम आ रहे हैं 10 मिनट आप लोगों से जरा कुछ महत्वपूर्ण बात करना है, एक परिवर्तन की बात करना है, व्यवस्था परिवर्तन की बात करना है, आपके साथ बैठ के बहुत दिनों से चाय नहीं पी, चाय भी पीना है, यदि हम उनके बीच में जाके एक वीडियो देखते हैं और उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं, एंड देन जैसा हमने आपसे पूछा है वैसे ही आप उनसे पूछें कि आप सदस्य भूमिका में जुड़ना चाहते हैं या चंद्रगुप्ती भूमिका में जुड़ना चाहते हैं. एंड नाउ आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू कि सदस्य का मतलब है पर्दे के पीछे जो डायरेक्ट सामने नहीं आता ना चाहता है, और चंद्रगुप्त का मतलब है जो सामने आके एग्रेसिवली कॉम्पिटिटिव उसमें मेरिट लिस्ट में आएगा सबसे अधिक लोगों को जोड़ के, राइट? तो जैसे कर्नाटका की स्थिति में जो है ना मेरिट लिस्ट 224 लोगों की होगी, और जैसा हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि उसको टिकट भी मिल जाएगा, और उसको जो सदस्य हैं उनकी संख्या बड़ी आसानी से इंडिया लेवल पे हम कहें तो 9 दिन में, यदि हम 90 दिन वाले जो 90 वाला कॉन्सेप्ट यदि हम क्लियर करते हैं, तो 9 दिन में हम 100 करोड़ से भी अधिक होंगे, विच मेक्स इट ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन. अब इस 70% ऑफ पॉपुलेशन को अभी अपन ने तीसरे चरण में तीसरी बात में क्या कहा उसको
कि वो अपनी छत पे जाएगी, थाली बजाएगी, दीपक जलाएगी और कहेगी कि फलाना फलाना हमारा क्षेत्र का चंद्रगुप्त है, उसने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, मैं उसे विजयी बनाऊंगा, राइट। एंड देन जिस दिन वोटिंग है वो उसी के बटन में बटन दबा के उसको वो करेगा। तो इस होल कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पब्लिसिटी, उसको कोई कोई इलेक्शनरिंग का कोई कैंपेन की जरूरत नहीं है, कोई आम सभा की जरूरत नहीं है। जब जब जो है मतदाता खुद संकल्प ले रहा है कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा 21 लक्षों के लिए, अपराध मुक्त भारत के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे चंद्रगुप्तों को किसी तरीके का प्रचार करने की जरूरत है, किसी तरीके की कैनवासिंग करने की जरूरत है, क्योंकि वो कैनवासिंग तो उसी समय कर चुका है जब उसने लोगों को जागृत करके जोड़ा है। क्लियर? तो उसको उससे हटके कोई बात कहना भी नहीं है। नाउ यू सी द साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ इट कि यदि 70% जो है ना कर्नाटका की पॉपुलेशन छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कह रही है कि फलाना फलाना मेरा चंद्रगुप्त है, मैं इसे विजयी बनाऊंगा, तो आपको नहीं लगता है कि जो 30% लोग जो कि जुड़े भी नहीं हैं, जिन्होंने कोई ऐप नहीं लिया है, उसमें कोई वो नहीं किया है, दे विल आल्सो फील टेम्पटेड टू गो ऑन द रूफ एंड टेक द सिमिलर प्लेज इवन विदाउट बिकमिंग द मेंबर, कि भाई इतने बड़े लक्ष्यों के लिए तो मैं भी जो है ना आपके साथ हूं, राइट। एंड almost 90% odd population then will be with the crime free भारत मिशन। इट मीन्स कि सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे और कुछ लोगों की तो जमानतें भी जब्त होंगी। डू यू अप्रिशिएट द strength of the model and do you appreciate the gain for the public and for the country? ये बात आप समझ पा रहे हैं कि कितना बड़ा और क्रांतिकारी परिवर्तन जमीन पे उतरेगा? करेक्ट, राइट। तो शुड आई रिक्वेस्ट यू कि नेक्स्ट 9 days में यदि आप 90 लोगों को जोड़ेंगे तो इसका बहुत बड़ा जो है पॉजिटिव लाभ देश आपको खुद को भी मिलेगा, बिकॉज यू विल बी बेनिफिटेड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन, और इस देश को मिलेगा, क्योंकि ये राजनेताओं ने तो जो है 75 साल से हमें हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं, और एक के बाद एक घटिया कानून बने जो संविधान की व्यवस्था के विपरीत हैं, इन्होंने उसे रिपील भी नहीं किया। अब जैसे आर्टिकल 370 के बारे में हम लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि चलिए भाई इन्होंने हटा दिया, लेकिन हम में से अधिकांश लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि पीछे से जो है मई 2020 में एक डोमिसाइल पॉलिसी चुपचाप जो है ना पीछे से जो है ना डाल दी गई, जिसके तहत जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उन्हें ही कश्मीर में नौकरी मिलेगी, राइट। मतलब ए से लेकर डी टाइप के सभी जॉब जो है केवल उन्हीं लोगों के लिए रिजर्व कर दिए जिनके पास डोमिसाइल है, और डोमिसाइल केवल उसी को मिल सकती है जो 15 साल वहां रहा हो या 7 साल की उसकी शिक्षा हो। करेक्ट। तो देखा जाए तो इन ए वे दिस डोमिसाइल पॉलिसी इज नॉट इन कंसोनेंस विद द अदर स्टेट्स, राइट। इसमें जो है आर्टिकल 370 की थोड़ी बदबू इसमें भी आ रही है, राइट। एंड इफ दे वर द सॉलिड रीजन देन इट शुड हैव बीन डिबेटेड कि भाई मैं ये कर रहा हूं, ये ऐसी डोमिसाइल पॉलिसी लेके आ रहा हूं और इससे ये फायदे होंगे। तो यदि वो चुपचाप ढंग से किया गया है और उससे आर्टिकल 370 का कुछ लाभ जो है कम हो गया है, तो दैट इज रियली वेरी बैड। अब इसमें ये चीज भी देखी जाए कि कश्मीर की जो सही प्रॉब्लम, आपको ये बात मालूम है कि आई हैड बीन द आईजी ऑपरेशंस कश्मीर आल्सो, आई हैव सर्व्ड इन कश्मीर। Okay, sir. Even I was there in Kashmir, sir. Oh, great. I was there in Jammu for 2 years and Srinagar 2 years, sir. Oh, great. In किन सालों में रहे हैं? Sir, Jammu I was there in 84-85. Okay. And Srinagar 96-97 I was there in Srinagar. So 96-97 is certainly important years to go. 84 वगैरह तो नहीं होगी उस समय तो the militancy was at the peak basically. Yeah, it was on the peak and I know the difficulties, sir.
या तो आप इस बात को बहुत अच्छे ढंग से अप्रिशिएट कर सकते हैं कि Yes. कश्मीर समस्या का सही जो समस्या थी वो आर्टिकल 370 में नहीं है। आर्टिकल 370 तो ये कह रहा है कि आप आपके संविधान का जो हिस्सा आप लागू करना चाहते हैं वो आप प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन से जारी कर सकते हैं, राइट? इट इज ए इनेबलिंग क्लॉज, राइट? Correct. आर्टिकल 35A जितना भी मक्कारी बदमाशी कश्मीर में हुई है वो आर्टिकल 35A से हुई है, और आर्टिकल 35A असंवैधानिक तरीके से संविधान में घुसेड़ा गया है। आर्टिकल 35A नेवर वेंट टू पार्लियामेंट, इट वाज नेवर डिबेटेड एंड इट बिकेम द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट अमेंडमेंट। तो क्या Yes, that's correct. क्या संविधान का में कोई हिस्सा बन सकता है बिना अमेंडमेंट के? नहीं सर. नहीं बन सकता है। तो इट हैज बीन डन अनकॉन्स्टिट्यूशनली। जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तिगत दबाव बनाकर राजेंद्र प्रसाद के पास प्रस्ताव भेजा, राजेंद्र प्रसाद ने उसको मना किया। उन्होंने 8 पॉइंट लिखे कि इन 8 कारणों से यह संवैधानिक नहीं है, जिसका नेहरू जी ने जवाब दिया कि आप इसे जारी करिए, हम आपसे चाय पे चर्चा कर लेंगे। हम आपके सभी पॉइंट से सहमत हैं, लेकिन आप इसे जारी करें, हम आपसे चाय पे चर्चा कर लेंगे। Correct. Is this the way the Prime Minister should behave with the President? No. मुझे तो नहीं लगता है। मतलब उनका जो चाहे टिटुलर ही क्यों ना रहे, प्रेसिडेंट इज द टिटुलर हेड ऑफ द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द हेड। प्राइम मिनिस्टर मे बी एग्जीक्यूटिव, ही मे बी द चीफ एग्जीक्यूटिव, बट द टिटुलर हेड इज ए प्रेसिडेंट, राइट? और Yeah, correct. तो ना ये लैंग्वेज ठीक थी और ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और यदि पार्लियामेंट में कोई चीज नहीं आती है तो हम ऑर्डिनेंस फिर भी ला सकते हैं, राइट? Yeah, correct. लेकिन वो ऑर्डिनेंस की सेल्फ लाइफ केवल 6 महीने है। तो ये आर्टिकल असंवैधानिक तरीके से घुस गया और इट सर्वाइव्ड ऑल थ्रू। और जब जो है इसे जनवरी 2019 में भाजपा ने इसको रिपील किया, तो एक बार भी ये बात नहीं कही कि साहब ये असंवैधानिक तरीके से आया है। तो दैट रिफ्लेक्ट कि ये बड़े मेजर